Over 130 Indians are reported missing as the flash floods have wreaked havoc in Nepal. So far, 17 deaths have been reported, and Nepal is on high alert. So are the bordering states of UP and Bihar. The water from the Kosi River is seen dangerously overflowing the banks and crashing into buildings, sweeping away some of them, along with buses and human beings. They were caught unaware when a huge wave of flood water engulfed buildings in that entire area. Now, Prime Minister Narendra Modi has dialed Prime Minister of Nepal, Balendra Shah, and has offered to extend support. The Prime Minister has assured assistance to the Nepalese government in rescue and relief efforts. As we speak, the Indian government has also sent 10 tons of relief material, including emergency items such as temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps, and medicines. The Indian government has also issued helpline numbers in Nepal, and India is preparing to send relief material to the country. The Sashastra Seema Bal is also on alert at the borders. Back home in India, the dangerous rise in water levels in Kosi River has also prompted Indian government to keep a close watch. Home Minister Amit Shah has also reviewed the flood threat with the Bihar Chief Minister. So here's what we know so far. This is the specific area. Earthquake hit Rasua on the China-Nepal border at 8:37 a.m. The earthquake then triggered an avalanche, which in turn resulted in flash floods. The flood was triggered by excessive snowmelt entering the Bhote Koshi River. The Bhote Koshi River flows from China to Nepal and ultimately into the Ganges in India. Huge damage in Nepal and China has been witnessed, and those pictures, in fact, show what really has transpired. Let's also tell you how India has responded to the situation so far. While Prime Minister Modi has dialed his Nepalese counterpart, Prime Minister Shah, the Indian government is also sending relief material to Nepal. Helpline numbers have been issued for Indians in Nepal. Indian Air Force planes are on standby for future rescue operations, and the Sashastra Seema Bal is on alert on Indian borders. There are 2 additional NDRF teams that have been moved to Bihar, and Home Minister Amit Shah has taken stock, has dialed the Bihar Chief Minister. So those are some of the steps that are being taken at this point of time. At this point of time, there is also, of course, a lot of concern in India over the fact that flood water could be heading towards Indian territory very soon. Let's show you what we're talking about. Trishuli River in Nepal. This is, of course, where it all begins. Flows towards the Devghat area in Nepal and flows further into the Valmiki Nagar barrage that is on the India-Nepal border. And it's from there that the huge amount of water that's expected to enter Indian territory. So precautions being taken in India as well. Joining us now is the former Foreign Minister of Nepal, Mr. Narayan Prakash Saud. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. नारायण प्रकाश जी, हमने जो फ्लड्स देखे हैं, किस तरह की तबाही मची है नेपाल में, उसके दृश्य हमारे सामने आए हैं. क्या आप कहेंगे ये नेपाल के सबसे बुरे इकोलॉजिकल डिजास्टर्स में से एक है, और आपकी असेसमेंट क्या है पूरे सिचुएशन को लेकर? नमस्कार. जो तबाही देखी है अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकी है, और नेपाल बॉर्डर से उत्तर में करीब 5-6 किलोमीटर उत्तर में तिब्बत साइड में जो बहुत बड़ा हिमताल का विस्फोट हुआ है, इसकी वजह से जो है वो हमारा वहाँ पे कस्टम ऑफिस है, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसेज हैं, और वो हाई हिल एरिया है, वो हिमालयन एरिया है, इसीलिए जो बस्तियां हैं वो भी बेसिन में है, नदी के किनारों पे बसी हुई बस्तियां हैं, उन सबको साफ करते हुए, उनको पूरी तरह से धोती हुई जो नदी गई है, उससे हम लोगों के यहाँ गंभीर क्षति हुआ है. अभी क्षति का पूरी तरह से आंकड़ा नहीं आया है, करीब 1000 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, और पूरी तरह से सरकार भी सभी चीजों के प्रति वाकिफ नहीं है, जानकार नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है वक्त वक्त पर बदलता रहता है. कुछ हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कई मौसम बदलने के कारण नियमित फ्लाइटें, हेलीकॉप्टर की रेस्क्यू फ्लाइटें भी नहीं हो सकी हैं. इसलिए कई आर्मी पर्सनल्स, कई
पुलिस पर्सनल्स मिसिंग है। जो आप स्थिति का जो आप वर्णन कर रहे हैं बहुत ही गंभीर स्थिति है। आपने कहा 100 से ज्यादा लोग की मौत होने की संभावना है और 1000 से ज्यादा लोग अगर गायब हैं तो अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर दैट वी सीन इन द रीजन। बट इसका एग्जैक्ट कारण क्या बताया जा रहा है? क्योंकि ग्लेशियर फटने से लेकर स्नो एवलांच की बात की जा रही है, बादल फटने की बात की जा रही है, क्या कारण बताया जा रहा है? ये बादल फटने से देखिए इतनी बड़ी तबाही नहीं हो सकती। और इसका ज्यादा संभावना यह है कि ये ग्लेशियर ही फटा होगा। और ये उत्तर की ओर से ग्लेशियर फटने के ही खबर आ रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर से बहुत नजदीक का टिबेट का एरिया है जहां से जो है ग्लेशियर फटा है और उसके बाद ये तबाही आई है। जी, और आप क्या कहेंगे इससे क्या सीख मिलती है? क्योंकि हमने पूर्व में भी नेपाल में ही, भारत में भी जब हमने पहाड़ों में इस तरह की अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडीज देखी गई हैं तो कई बार जो है एनवायरमेंटल नॉर्म्स का वायलेशन सामने आता है कि जो नदियों के एकदम पास में लोग का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह की जब इंसिडेंट्स आती हैं सामने तो जो हमारे जो प्रिकॉशंस जो लिए जाने चाहिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन वायलेशंस के बारे में कई बार जो है हाईलाइट होती है? देखिए, ये आइलैंड की बात है नेपाल का, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि नेपाल एक पहाड़ का देश है और जहां भी नदियां होती हैं, नदियां बहुत बड़े बेसिन बना के रखती है और उस बेसिन में प्लेन होने की वजह से लोग आबाद करना शुरू कर देते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी नदी से जितना भी दूरी बना के रखेंगे तब भी कभी कभी ये हो जाता है कि जो है ऐसे घटना है जो युग में एक बार होती है, बहुत 100 वर्ष में भी एक बार होती है, ऐसे ग्लेशियर फट जाते हैं तो ये विपदा आ जाती है। जी, आप भारत से क्या अपील करेंगे? भारत ने ऑलरेडी, जैसे कि आपने कहा, बात की है कि रिलीफ मटेरियल भेजा जाएगा। आगे आप क्या कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरकार काम कर रही है। अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर का कई बयान मैंने सुना था कि 2 बिलियन से लगभग 2 खरब से ज्यादा क्षति इस बीच में हुआ है। वो करीब कई प्रोजेक्ट वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो थे वो बह गए हैं। वहां काम करने वाले कई सौ हजार लोग से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। हो सकता है कि वहां इस दुर्घटना के शिकार हो गए हों। इसीलिए वो नीचे का बेसिन भी जो है वहां भी कितने लोग पूरे गए हैं, कितने लोग बह गए हैं, इसके बारे में अभी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं आया है। कुछ पहले हमने विपत्ति व्यवस्थापन डिपार्टमेंट से भी ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तब भी वो लोग भी सभी चीजों के बारे में जानकार नहीं है। सरकार इमरजेंसी 3 जिलों में इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। एक रसुआ जिला है जो एकदम हिमालय से सटा हुआ है, दूसरा नुआकोट जिला है जहां काफी क्षति हुआ है, यहाँ तक भी कि वो तीसरा जिला जो धादिंग है वो भी क्षति के चपेट में आ गया है। इसीलिए सरकार इफोर्ट कर रही है इसके लिए। लोकल लेवल पर लोकल म्यूनिसिपैलिटीज जो है वहाँ जो है इमरजेंसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और राहत की जरूरत होगी, रेस्क्यू की जरूरत होगी, रिहेबिलिटेशन की, विशेष करके पुनर्स्थापना की भी जरूरत होगी। इस काम में सरकार आगे आएगी और इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क और इंटरनेशनल कम्युनिटी, डोनर एजेंसी, मल्टीलेटरल एजेंसीज वो आगे आएंगी, ऐसा हमें विश्वास है। नारायण प्रकाश सौद जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी सर्टनली होप दैट at the very earliest situation is resolved and heart goes out to the people of Nepal who have been at the receiving end of this extremely unfortunate natural disaster. Thank you so much for speaking to us, sir. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।